سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنے عنوان کا آغاز کروں، ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرتا چلوں کہ خطبہ جمعہ کے دن منبر سے جنگ آزادی کے موضوع پر خطاب کرنا یہ کوئی سیاسی خطاب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن منبر سے اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے کون کون سی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اس کو بیان کرنا یہ کوئی سیاسی مدعا نہیں ہے، بلکہ حالات زمانہ کے حساب سے ایک خطیب پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ حالت کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے اپنے موضوع کا انتخاب کرے۔ اسی طرح سے آج کے اس زمانے میں جنگ آزادی کے موضوع پر خطاب کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں پر تاریخ نویسی نہیں کی جاتی ہے بلکہ تاریخ سازی کی جا رہی ہے، یعنی جو اصل تاریخ ہے اس کو مٹا کر کے دوسری تاریخ، دوسری چیزوں کو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اس ملک کو آزادی دلانے میں جو اول ہیرو تھے ان کو غدار کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں انگریزوں کی چاٹوکاریتا کی، مجاہدین کے خلاف جنگ آزادی میں انگریزوں کی جاسوسی کی، وہ لوگ آج ہمارے اس زمانے میں اس ملک کے رستم اور ہیرو بنے کھڑے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سیاسی جنگ آزادی پر خطاب یہ سیاسی خطاب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم حدیث اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اپنے ملک سے محبت کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل کر کے کسی لمبے سفر پر جاتے تھے اور اس سفر سے جب واپس آتے تھے، لمبے سفر سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے تو دور سے ہی جب مدینہ کی دیواریں نظر آتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دور سے نظر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہر کی محبت میں، اس سے لگاؤ میں اپنی اونٹنی یا اپنی سواری کو تیزی سے دوڑایا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اپنے ملک کے لیے بابرکتی کی دعا کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ تو مدینہ کو مکہ کے مقابلے میں 2 گنا بابرکت بنا دے۔ اسی طرح سے اپنے ملک سے بیماریوں کے خاتمے کی دعا کرنا، اس کی سلامتی کی دعا کرنا، اپنے دل میں اپنے ملک کی محبت کے لیے دعا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ واشد وانقل حماہ الی الجحفہ اللہم بارک لنا فی مدنا وصائنا، اے اللہ تو میرے لیے مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جس طرح سے تو نے میرے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، او اشد، یا مکہ کے مقابلے میں میرے دل میں مدینہ کی محبت کو اور زیادہ کر دے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، وَانْقُلْ حُمَّاهِ إِلَى الْجُحْفَةِ، مدینہ کے اندر جو وبا پھیلتی ہے، الہی مدینہ میں جس بخار نے مدینہ کے لوگوں کو توڑ رکھا ہے، الہی تو اس بیماری کو، اس وبا کو جحفہ میں روانہ کر دے، جحفہ کی طرف منتقل کر دے، یعنی مدینہ کو بیماریوں سے ختم کر دے، مدینہ کے اندر کوئی بیماری نہ آئے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی پوری پلاننگ کر دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا بالکل دوبر کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے، آپ نے سرزمین مکہ کو یہ خطاب کیا تھا، آپ نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ ولولا انی خرجت منک ما خرجت، اے مکہ ساری کائنات میں جتنی بھی زمینیں ہیں سب سے محبوب ترین زمین اگر کوئی ہے تو ہے، ولولا انی خرجت منک ما خرجت، اگر آج مجھے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے پر مجبور نہ کیا جاتا، آج اگر مکہ میں میرا رہنا دوبھر نہ کیا جاتا، مکہ سن لے میں تجھے چھوڑ کر کے کبھی نہ جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے ملک کے بابرکت ہونے کی دعا کرنا،
اپنے ملک میں امن و شانتی کی دعا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جنگ آزادی کے موقع پر ممبر سے اس موضوع پر خطاب کرنا یہ سیاسی خطاب نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں تاریخ کو لوگوں کے سامنے لانا، اصل ہیرو کون تھے ان کو بیان کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. سامعین، تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں جب جب ظلم و جور نے، ناانصافی نے، بے چینی نے اپنے پر پھیلائے تو ان پروں کو کترنے کے لیے سب سے پہلے جس قوم نے آواز اٹھائی وہ مسلمانوں کی قوم تھی. اور حقیقت میں یہ ایک مسلمان کا دینی فریضہ بھی تھا اور اخلاقی فریضہ بھی. آج لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی ڈال دی گئی، وہ یہ کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک 1857 سے شروع ہوئی. 1857 عیسوی سے تحریک آزادی کا آغاز ہوا. میرے بھائی اور دوستو، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک آزادی کی تاریخ بہت پرانی ہے. 1857 سے بہت پہلے مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی تھی. سن 1757 عیسوی کے اندر، یعنی تقریباً 100 سال پہلے، مرشد آباد کے نواب سراج الدولہ نے پلاسی سے جنگ آزادی کی تحریک چھیڑی اور اپنے سپہ سالار میر جعفر شیعہ غدار کی وجہ سے نواب سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں جنگ ہار گئے اور انگریزوں نے ان کو شکست دے دی. اسی طرح سے 1799 عیسوی کے اندر 1799 عیسوی کے اندر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور شہید ہو گئے. اور جب ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شکست دے دی تو ایک انگریز افسر نے ٹیپو سلطان کے سینے پر پیر رکھ کر کے کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، آج سے یہ بھارت ہمارا ہے، آج سے انڈیا ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو ختم کیا تھا. اسی طرح سے 1825 عیسوی کے اندر باقاعدہ مسلمانوں نے تحریک آزادی کی آواز بلند کی اور اسی طرح سے جنگ آزادی کی چوتھی تحریک کی تاریخ بہادر شاہ ظفر نے اٹھائی اور رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کو اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو کاٹا گیا. بیٹوں کے کلیجے کو تل کر کے رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کے سامنے رکھا گیا. اور جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا تھا اور رنگون کی جیل میں ڈالا گیا تو ایک انگریز افسر نے یہ شعر کہا تھا. اس نے کہا، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی. بہادر شاہ ظفر سے انگریز نے کہا تھا، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. تو اس شعر کے جواب میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گا تیغ ہندوستان کی. میرے بھائی اور دوستو، وہ بہادر شاہ ظفر جس نے اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کے کلیجے کو تلتا ہوا، بھونتا ہوا دیکھنے پر مجبور ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ 1857 سے بہت پہلے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی تھی، مسلمانوں نے آوازیں بلند کی تھی. وہ تو بہت بعد کے اندر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اور شورش کاشمیری نے بھی کہا تھا، شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا. میں غلط فہمی کا اشارہ کر رہا ہوں کہ 1857 سے پہلے مسلمانوں نے جنگ آزادی کی تاریخ چھیڑ دی تھی. آج یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 کے بعد جنگ آزادی کی تاریخ اٹھی. یہ غلط تاریخ ہے. 1857 تو ہے ہی، لیکن اس سے بہت پہلے مسلمانوں نے، خصوصاً قرآن و سنت کے ماننے والوں نے، جنگ آزادی کی تاریخ اٹھائی. شورش کاشمیری نے کہا تھا، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسم قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں، بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں، خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں، اس افق تابا افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں. اور اس کے آخر میں کہا کہ حیف اب وقت کے غدار بھی رستم ٹھہرے، حیف اب وقت کے غدار بھی رستم ٹھہرے اور زندان کے سزاوار فقط ہم ٹھہرے. یہ شورش کاشمیری نے اس وقت کے مجاہدوں کے لیے یہ شعر کہا تھا. میرے بھائی اور دوستو، اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس ملک کو آزادی دلانے میں مسلمانوں نے جو جان و مال کی قربانیاں پیش کی، اپنی عزت و آبرو کی قربانیاں پیش کی، وہ آثار من الشمس سے تاریخ کے سینوں میں مسلمانوں کی قربانیاں آج بھی محفوظ ہیں. لیکن آج ہم دیکھیں اسی ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ہمیں ہی رہنے کا حق نہیں ہے. ہماری درسگاہوں پر حملے کیے جائیں،
हमारी इबादत गाहें हमारे से खतर में हो। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के कवानीन बनाए जाते हैं और मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। शायर ने कहा था, गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको याद होगा, तारीख आप उठा करके देखें, इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में सबसे पहला पत्रकार जिसने अपनी जान गंवाई, मौलवी मोहम्मद बाकिर एक मुसलमान था। इसी तरह से सबसे कम उम्र में हिंदुस्तान की खातिर मरने वाला, हिंदुस्तान की खातिर अपने जान को कुर्बानी देने वाला, कुर्बान करने वाला अशफाकुल्लाह खान एक मुसलमान था। इसी तरह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नस्ल लिखने वाला शायर अल्लामा इकबाल एक मुसलमान थे। और इसी तरह से आज जो तिरंगा आप देखते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के गले गले में जो तिरंगा आप देखते हैं, इस तिरंगे को बनाने में सबसे अहम किरदार निभाने वाली खातून सुरैया तैयबा एक मुसलमान थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, भगत सिंह का केस लड़ने वाला आसिफ मुसलमान वकील था। शायर ने कहा था, राहत इंदौरी ने कहा था कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और हमारे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम देखें, मजमूई एतबार से मुसलमान टारगेट पे हैं, मजमूई एतबार से मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश की जाती है। उसमें मुसलमानों का जो एक खास तबका है, उलमा का तबका, उस तबके को भी सताने की, उस तबके को परेशान करने की कोशिश की जाती है। बल्कि जो उलमा का तबका है, उस तबके को कठमुल्ला का लक़ब दिया गया। उस तबके को संसद के अंदर खड़े होकर के कठमुल्ला का लक़ब दिया गया। शायद लोगों को मालूम नहीं कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में उलमा ने कितनी कुर्बानियां पेश की, मौलवियों ने कितनी कुर्बानियां पेश की। आप तारीख उठा करके देखें, उलमा ने पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहले दौरा किया। पूरे हिंदुस्तान का देहातों, कस्बातों, बिलाद के अंदर तमाम उलमा फैल गए और उनके दो मकासद थे। पहला मकसद ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं और उन मुसलमानों के अंदर जो हिंदुआना रस्म और रिवाज आ गए हैं, मुसलमानों को उन रस्म और रिवाज से आज़ादी दिलाई जाए। मुसलमान जो कुफ्र शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं, मुसलमानों को उन शिरकिया अकाइद से, उन खुराफात से, उन बिदात से मुसलमानों को आज़ादी दिलाई जाए। इस मकसद के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर देहातों, कस्बातों, बिलाद के अंदर तमाम के तमाम उलमा फैल गए। और उन्हीं उलमा का एक दूसरा मकसद ये था कि इस मुल्क को अंग्रेजों की आज़ादी से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई जाए। उलमा का दूसरा मकसद ये था कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई जाए। उलमा के इन दोनों मकासद ने, उलमा के ये दोनों तहरीक, इन दोनों तहरीकों ने पूरे बर्रे सगीर में एक तहलका बर्पा कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि उस जमाने में लोग किस कदर कुफ्र में, शिर्क के अंदर डूबे हुए थे। सबसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कुरान करीम का फारसी, कुरान करीम का अरबी जबान से फारसी जबान में तर्जमा किया, जंग आज़ादी के मौके पर अपने जमाने में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कुरान करीम का अरबी जबान से फारसी जबान में तर्जमा किया, तो हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने, हिंदुस्तान के मौलवियों ने, खुराफाती मौलवियों ने, खुराफाती मुसलमानों ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर जानलेवा हमला किया था और यह कहा था कि यह खुदा के कलाम को समझने की कोशिश कर रहा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये खुदा के कलाम को समझने की कोशिश कर रहा है, इसे दुनिया के अंदर रहने का हक नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ उस जमाने में लोगों के अकाइद में किस कदर बिगाड़ थे, लोग किस कदर गुमराह हो चुके थे। रब्बे कायनात के कलाम को समझना गुमराही थी, रब्बे कायनात के कुरान को समझना, उसको पढ़ना लोग गुमराही समझते थे। कुरान करीम को सिर्फ और सिर्फ लोगों ने, मुसलमानों ने तबर्रुक के लिए रखा था, चूमने के लिए रखा था, बरकत हासिल करने के लिए रखा था, समझने के लिए मुसलमानों ने नहीं रखा था। इसी मकसद को और इसी चीज को खत्म करने के लिए उलमा ने बाकायदा दावत व तबलीग की तहरीक उठाई और शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने में बिदात व खुराफात को खत्म करने के लिए, शिरकिया अकायद को खत्म करने के लिए एक किताब लिखी थी अरबी जबान के अंदर, तक़वियतुल ईमान। आज वो किताब उर्दू जबान में मौजूद है। आप देखेंगे उस जमाने में किस कदर लोगों के अकायद में फसाद था, लोग किस कदर बिगड़े हुए थे। शाह इस्माइल ने तक़वियतुल ईमान नामी किताब लिख करके बहुत सारे अकायद का, गलत अफकार का उन्होंने खुलासा किया, उसकी तरदीद की। मेरे भाइयों दोस्तों, कभी मैंने खुतबे जुमा के अंदर कहा था, शायद आपको याद होगा
कि गुनाह और बहादुरी दोनों एक साथ कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। आदमी गुनाह भी करे और दीन के तई बागैरत भी हो, दीन के तई जुर्अतमंद भी हो, ये नहीं हो सकता है। उलमा ने लोगों के अंदर से गुनाहों को खत्म करने के लिए, उस जमाने में उलमा ने जो किताबें लिखी, जो दावत व तबलीग का काम किया, वो इसी मकसद के लिए किया था कि लोगों को गुनाहों से पाक किया जाए, लोगों को गुनाहों से धोया जाए, क्योंकि गुनाह और बहादुरी ये दोनों एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। इसीलिए उलमा ने दावत व तबलीग का और शिरकिया अकायद का बाकायदा खुल्लम खुल्ला उसकी तरदीद की, उसके खिलाफ किताबें लिखी। आप देखें, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया था, एक मौलवी ने यह फतवा दिया था कि अंग्रेजों की गुलामी आज से हराम है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह पर अंग्रेजों ने उनके सर को हासिल करने पर जिंदा या मुर्दा 50,000 रुपए का इनाम रखा था। आप सोचे वो मौलवी, वो आलिम दीन अंग्रेजों के लिए कितना खतरनाक रहा होगा। जिस आलिम पर 50,000 रुपए का इनाम उस जमाने में रखा जाए, आप सोचें कि उस आलिम दीन ने अंग्रेजों की नींदों को किस तरह से हराम किया होगा। इसी तरह से सैयद अहमद और उनके रफाका को, ये पूरी उलमा की टीम थी, सैयद अहमद और उनके रफाकों को बालाकोट के मैदान में मार दिया गया, पूरी जमात को खत्म कर दिया गया। तारीख आप उठा करके देखें कि जब आपके दिल्ली में मियां नसीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनका एक इदारा नसीरिया मौजूद है, बहुत बोसीदा इदारा, बहुत छोटा सा इदारा, अभी भी अंग्रेजों से छुप छुपा करके हिंदुस्तान के अंदर हदीसों की तालीम दिया करते थे। मियां नसीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने पर जब साइन किया, दस्तखत की फतवा दिया, मौलाना को दिल्ली से रावलपिंडी के जेल में बंद कर दिया गया। मियां नसीर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली से गिरफ्तार करके रावलपिंडी के जेल में बंद कर दिया गया और उनके बहुत सारे शागिर्दों को गिरफ्तार किया गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, उलमा की कुर्बानियां, मैं ये कहूं कि उलमा के सिर्फ नाम गिना दूं, टाइम होने तक नहीं हो सकता। जितने उलमा ने अपने सर को कटाए हैं, उलमा ने जितनी कुर्बानियां पेश की हैं, कुर्बानियों को गिनाना, कारनामों को गिनाना बहुत दूर की बात है। इस जुमा के अंदर 1 घंटा कम से कम लग जाएगा उलमा के नामों को शुमार कराने में। इस कदर फहरिस्त है उलमा की इस देश को आजाद कराने में। ना कि दो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए हमने मजबूर जबानों को नमा बख्शी है, कशकुलाहों की रोनक का उड़ाया है मजाक, हमने तारीख के चेहरे को जिया बख्शी है। उसके बावजूद आज मुसलमानों पर यह दावा किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए जाते हैं, मुसलमानों को हिंदुस्तान से जाने की अपील की जाती है, मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है। और वो लोग जो हिंदुस्तान के उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे, मुजाहिदीन के खिलाफ जासूसी किया करते थे, आज वो इस मुल्क के हीरो बने हैं, आज वो इस मुल्क के सबसे बड़े हमदर्द बने हैं। शायर ने कहा था, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जो हिंदुस्तान की आजादी में जिनका कोई रोल नहीं था, जिन्होंने मुसलमानों को, मुजाहिदीन को मरवाने की कोशिश की, आज वो इस मुल्क के हीरो हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो जमात, जिस जमात को जमात अहले हदीस का नाम दिया जाता है, इस जमात को अंग्रेजों ने जो लकब दिया था वो वहाबी का लकब दिया था। क्यों दिया था? आप अंग्रेजों की किताबें उठा करके देखें, जगह जगह पर वहाबी तहरीक का तस्करा आपको मिलेगा। अंग्रेजों को उस जमाने में सबसे ज्यादा अगर किसी जमात से तकलीफ थी, किसी जमात ने अंग्रेजों की नींदों को हराम किया था, तो वो जमात जमात अहले हदीस थी। और उस जमात को बगावत की वजह से, उस जमात को बगावत की वजह से अंग्रेजों ने वहाबी यानी बागी का नाम दिया था। वहाबी मिसले बागी यानी बगावत करने वाला। और आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान हमसे ये सवाल करते हैं कि तुम 1857 से पहले की अपनी मस्जिद दिखा दो, 1857 से पहले की अपनी कोई मस्जिद दिखा दो। हमारे मुसलमान हमसे ये सवाल करते हैं, हमें वहाबी कहकर के गाली देते हैं। वो जमात जो अहले हदीसों की जमात थी, किताब और सुन्नत के मानने वाले लोग थे, जिस जमात को अंग्रेजों ने टारगेट किया, अंग्रेजों ने उस जमात को बागी और वहाबी का लक़ब दिया। उस जमात से आज मुसलमान ये सवाल करते हैं, उस मसलक से मुसलमान सवाल करते हैं कि 1857 से पहले की अपनी मस्जिद दिखा दो। मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जाओ और डॉक्टर ताराचंद की किताब पढ़ लो। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि तहरीक आज़ादी में जमात अहले हदीस ने, वहाबियों ने 5 लाख जानों की कुर्बानी पेश की। डॉक्टर ताराचंद की किताब आप उठा करके देखो। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी किताब के अंदर लिखा है
کہ जंग आज़ादी में जमात अहले हदीस ने, वहाबियों ने 5 लाख जानों की कुर्बानी पेश की। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये किसी मुसलमान की गवाही नहीं है, ये किसी हमारे अपनी जमात की गवाही नहीं है, ये गैरों की जमात की गवाही है, गैरों की गवाही है। उन्होंने ये गवाही दी कि जंग आज़ादी में 5 लाख अहले हदीसों ने कुर्बानियां पेश की। और आज इसी तरह से लोग जमात अहले हदीस को अंग्रेजों की औलाद कहते हैं, अंग्रेजों की औलाद कहते हैं। दावरे हश्र मेरा नामे आमाल न पूछ, दावरे हश्र मेरा नामे आमाल न पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। जमात अहले हदीस को, अहले हदीसों को अंग्रेजों की औलाद का लक़ब दिया जाता है, अहले हदीसों को अंग्रेजों की औलाद कहा जाता है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जाओ और इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट पढ़ लो। उन्होंने बिहार में खिताब करते हुए कहा था कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में, इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में जितने भी लोगों ने कुर्बानियां पेश की, जितनी भी कौम के लोगों ने कुर्बानियां पेश की हैं, उन तमाम लोगों की कुर्बानियां तराजू के एक पल्ले में रख दी जाए और शहरे सादिकपुर की अहले हदीसों की कुर्बानियां एक पल्ले में रख दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सादिकपुर के अहले हदीसों की कुर्बानियां तमाम लोगों की कुर्बानियों पर गालिब आ जाएंगी। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। उन्होंने बयान दिया कि तमाम लोगों की कुर्बानियां एक तरफ और सादिकपुर के अहले हदीसों की कुर्बानियां एक तरफ। और उसी शहर से बिलोंग करने वाले यहया अली खान, मौलवी यहया अली खान को जब अंग्रेजों ने मुजाहिदीन की इमदाद करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया, यहया अली खान मुजाहिदीन की इमदाद किया करते थे, उनको मदद पहुंचाया किया करते थे। अंग्रेजों को पता चला, यहया अली खान को गिरफ्तार किया, आलिम दीन को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल के अंदर बंद रखा और काफी दिनों तक जेल के अंदर रखा। और जब फैसला आया कोर्ट के अंदर, यहया अली खान को पेश किया गया। अंग्रेजी कोर्ट ने, अंग्रेजों ने यह फैसला सुनाया कि यहया अली खान को फांसी दे दी जाए, यहया अली खान को फांसी दे दी जाए। फांसी सुन करके यहया अली खान मुस्कुराने लगे, फांसी का लफ्ज सुन करके, अपने हक में यह फैसला सुन करके यहया अली खान मुस्कुराने लगे। एक अंग्रेज ने पूछा कि यहया, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। यहया अली खान ने कहा था कि मैं अभी कुछ ही देर में अपने रब्बे कायनात से मिलने वाला, इस बात से मुझे खुशी है कि अभी कुछ ही पलों के अंदर, कुछ ही देर के अंदर मैं अपने रब से मुलाकात करूंगा। इस वजह से मुझे मुस्कुराहट आती है, मुझे खुशी है। उस अंग्रेज अफसर ने यहया अली खान की फांसी का जो फैसला आया था उसको मुनक़ते कर दिया, उसको मुलतवी कर दिया और यह हुक्म दिया कि यहया अली खान की दाढ़ी मोड़ दी जाए, यहया अली खान की दाढ़ी को काट दिया जाए। अंग्रेजों ने यहया अली खान की दाढ़ी को मोड़ दिया। वो आलिम दीन, वो मुजाहिद जो फांसी की सजा सुन करके मुस्कुरा रहा था, आज दाढ़ी के कटने पर रोने लगा। अंग्रेज ने पूछा कि यहया, जब फांसी की सजा सुनाई गई तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, आज दाढ़ी काट दी गई, दाढ़ी मोड़ दी गई तो यहया रो रहे हो, क्या बात है? यहया ने कहा कि मैं अपनी दाढ़ी की खुशनसीबी को देख रहा हूं और खुद की बदनसीबी को देख रहा हूं। ये दाढ़ी मुझसे पहले रब्बे कायनात की राह में कुर्बान हो गई। यहया अली खान ने यह जवाब दिया था अफसर को। मेरे भाइयों और दोस्तों, शायर ने कहा था, हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की, हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशिया अपना। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुसलमानों की जो कुर्बानियां हैं हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में, ख़ास तौर से किताब व सुन्नत को मानने वालों की, आप मेरी बातों पे भरोसा ना करें। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप सिर्फ तारीख की किताबें उठाएं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इसी तरह से जो दीगर लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी पर बेशुमार किताबें लिखी हैं, आप उन किताबों को उठा करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में खास तौर से मुसलमानों और किताब व सुन्नत के मानने वालों ने कितनी कुर्बानियां पेश की। और आपको पढ़ने से, तारीख की तरफ जाने से आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले लोग कौन थे और हिंदुस्तान के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोग थे। ये सारी की सारी चीजें तारीख की किताबों में महफूज हैं। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में लोगों ने कितनी कुर्बानियां पेश की। आखिर में मेरे भाइयों, मैं एक शेर कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि यह अलग बात कि कुछ लोग खफा रहते हैं, यह अलग बात कि कुछ लोग खफा रहते हैं,
اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں، ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں۔